So let me start with doubts first. Okay, so everyone note down the first doubt. Okay, of today's class is number 7, and the question is 2 tan inverse cos x is equal to tan inverse 2 cosec x. Okay, so note down. सबसे पहले हम लोग 2 tan inverse x का फॉर्मूला अप्लाई करें, which is tan inverse 2x divided by 1 minus x square. Now दोनों तरफ tan inverse है, दोनों तरफ लेफ्ट साइड में. So let us compare 2 cos x. 1 minus cos square x is sin square x. 2 cosec x मतलब 2 by sin x. Let us cancel 2 both the sides. Now everyone note down, we cannot cancel sin x both sides. ठीक है, याद रखना ये हम लोग दोनों तरफ sin x कैंसिल नहीं कर सकते. If you ask what is the reason, लास्ट डे भी मैंने बताया था कि जिस वेरिएबल को हम लोग सॉल्व करें उसको हम कैंसिल नहीं कर सकते इस तरह से. So I'll cross multiply here. So we have sin x into cos x equal to sin square x. Let us bring sin square x on the left hand side. Now what is common in both these terms? इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है बताना एक बार. sin x. तो बच जाएगा cos x minus sin x equal to 0. Either sin x equal to 0 or cos x minus sin x equal to 0. Now sin x, अब देखो यहाँ पे कुछ और कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसा कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, देखो कि x इज ग्रेटर देन ऐसा कुछ कंडीशन दिया तो नहीं है यहाँ पे कंडीशन. चलो ठीक है, sin x इज इक्वल टू 0. ओके एवरीवन. सो अगर मान लो sin x 0 है तो फिर यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा. sin 0 क्या होता है 0. रिपीट, sin 0 is equal to 0. So if you compare both the sides, what is the value of x? It is 0 here. Let us take sin x on the right hand side. Cos x equal to sin x. 1 is equal to sin x by cos x. Now what is sin x by cos x? It is tan x. What tan के किस एंगल का वैल्यू होता है? tan का किस एंगल का वैल्यू 1 होता है? tan pi by 4. So if you compare both sides, the value of x is pi by 4. The value of x is 0 and the value of x is pi by 4. Once copy down once, then I'll explain you how to verify whether both these answers are possible or not. ध्यान से नोट करना. If I put the value of x equal to 0 here, 0, note down everything. So what is the value of cos 0? Anyone? 1. Cos 0 कितना होता है? 1 होता है ना. अब बताओ 1 tan के किस एंगल का वैल्यू 1 होता है? 45 डिग्री होता है. ठीक है. What is 2 into 45? 90 डिग्री. Now let us put on the right hand side. अब बताओ cosec 90 कितना क्या होता है? बताओ cosec 90. सॉरी, cosec 0 क्या होता है? अनडिफाइंड. cosec 0 अनडिफाइंड होता है. 2 into undefined is undefined. अनडिफाइंड tan के किस एंगल का वैल्यू होता है? tan 90 होता है ना. tan 90. So tan inverse of tan 90 is 90. मतलब लेफ्ट राइट दोनों तरफ बराबर आ रहे ना बराबर. अब एक काम करते हैं, पाई बाय 4 पुट करके चेक करते हैं. अगर हम यहाँ पे पाई बाय 4 पुट करते हैं तो cos पाई बाय 4 कितना होता है? कितना होता है cos पाई बाय 4? 1 by root 2. तो यहाँ पे आ गया 2 tan inverse 1 by root 2. और राइट में देखना एक बार, यहाँ पे है cosec पाई बाय 4. cosec पाई बाय 4 कितना होता है बताना एक बार. cosec 45 डिग्री कितना होता है? रूट 2 होता है. मतलब यहाँ पे हो गया 2 रूट 2. ठीक है. मतलब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये
मतलब अनडिफाइंड, मतलब कुछ ऐसा मतलब नॉट पॉसिबल नहीं हो रहा है ऐसा, ठीक है, नॉट पॉसिबल वाला सिचुएशन नहीं अराइज होगा। तो देखना यहाँ पे अगर हम लोग 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करें, which is tan inverse 2x by 1 minus x square, you will find that you will get the same result. चेक कर लो, 2√2 ही मिलेगा, ठीक है, मतलब दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। So we find that both the answers are possible. मतलब what is the required solution? The required solution is x equal to 0 and x equal to pi by 4. These are the two required solutions. So you may copy it down. So this is the way how we check. I hope you all have understood. 0 पुट किया मैंने लेफ्ट राइट और देखा 1990 आ रहा है। pi by 4 पुट किया तो क्या रहता है यहाँ पे 2 into tan inverse 1 by root 2 और यहाँ पे tan inverse 2 root 2 आ रहा है। तो इसको वैसे छोड़ दो एक बार, इसको सॉल्व किया तो ये आ रहा था tan inverse 2 root 2 ही आ रहा था, मतलब मैच कर रहा है, मतलब दोनों आंसर्स पॉसिबल है। ओके, नाउ नेक्स्ट, now the next doubt is number 8. We have two sides. अच्छा देखो एक बार, नंबर 7 और 8 एकदम एक जैसा है, ठीक है ना। देखो अभी मैं देख रहा हूँ कि नंबर 7 और 8 एकदम एक जैसा है, तो अब अगर किसी का नंबर 7 डाउट या 8 डाउट है, अब तुम लोग ट्राई करना, ठीक है। नंबर 8 यू, आई थिंक यू विल बी एबल टू डू एग्जैक्टली द मेथड इज सेम। ऑलराइट एवरीवन, नाउ नेक्स्ट, अब बताना एक बार 10 के बाद मैंने कौन कौन सा सम दिया था, नंबर 11 दिया था ना करने के लिए। सर 10 में डाउट है क्या सर, मतलब आंसर आ रहे हैं बट दो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा अगर मेथड चेंज कर रहे हैं ना तो आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, बट एक मेथड तो राइट। मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। See, we have got sin inverse x by 5 plus cosec inverse 5 by 4, and on the right hand side we have pi by 2. See, I mean, last day only I had said that in the previous class that never directly apply the formula. You याद है मैंने बताया था एक रूल, एक तरीका बताया था, एक टेक्निक बताया था जहां पे मैंने बोला था शिफ्टिंग मेथड फॉलो करना है। डू यू रिमेंबर दैट? यस डू यू रिमेंबर दैट शिफ्टिंग मेथड कब अप्लाई करते बताओ तो? tan इनवर्स वाले में नहीं अप्लाई करते, जब भी sin इनवर्स में और cos इनवर्स में एक्सप्रेशन हो, ठीक है, तब हम लोग शिफ्टिंग मेथड स्ट्रिक्टली अप्लाई करेंगे, नहीं तो सम अननेसेसरी बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये शिफ्टिंग मेथड क्या है देखना एक बार, इन दोनों में से किसी एक को राइट में लेके चलते हैं, किसी एक को हम राइट में लेके चले जाए। अब बताना एक बार सबको, व्हाट इज पाई बाय 2 माइनस cosec इनवर्स 5 by 4? कैन यू टेल मी? पाई बाय 2 माइनस cosec इनवर्स 5 by 4 कितना होगा बताओ तो एक बार। कितना? sec inverse 5 by 4। sec इनवर्स 5 by 4। अब उसके बाद sec इनवर्स 5 by 4 को क्या हम sin इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, ट्रायंगल बनाया था नहीं, इसको ट्रायंगल पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। sec इनवर्स क्या होता है? रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो p क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन इनवर्स इज द रेशियो ऑफ p by h, दैट इज 3 by 5। तो यहाँ तो x का वैल्यू 3 आया, एक ही आया आंसर, ठीक है। तो दो कैसे आ सकता है? यस सर, समझ गया, मिस्टेक था। ठीक है, नेक्स्ट। तो अपना अपना डाउट सबको क्लियर कर लेना, ठीक है, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, अपना डाउट क्लियर कर लो। नेक्स्ट 10 के बाद, अच्छा बताओ तो मैंने 11 और 12 दिया था सम्स करने के लिए। सर 12 नहीं दिया था बट 11 दिया था। ठीक है, 11 हुआ सबका? यस, प्लीज रिप्लाई। यस सर। ओके, व्हाट इज द आंसर? 11 का आंसर क्या है? प्लस माइनस 3 by 2। अच्छा देखो तो आंसर प्लस माइनस 3 by 2 है सबका।
किसी का डिफर नहीं ना किया? 3/4 3/4 या 3/2? 3/4 3/4, हाँ इतना सही है, ठीक है 3/4 करेक्ट है। नाउ उसके बाद मैंने दिया था कुछ सम्स, लेकिन अब एक काम करते हैं, सीरियली सारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सारा हम सीरियली हम करते हैं, ठीक है। मतलब अभी हम लोग आज करेंगे नंबर 12, 15 एंड नंबर 18। तुम देख लेना एग्जाम में यही सब सम्स आएगा अगर x का वैल्यू निकालने बोलेगा तो, ठीक है। तो एक काम करते हैं 15 नंबर पहले बताए। सो क्वेश्चन नंबर 15, आई वांट योर अटेंशन हियर। तुम लोग सबको को एडवाइस है कि ये वाला सम को का जो मेथड है उसको ध्यान से देखो और कहीं भी अपना दिमाग मत लगाओ, पहले भी पूरा का पूरा कंसंट्रेशन यहां पे करो, ध्यान। So you all know that I had asked you all not to apply the formula in case you have to determine the value of x and the expression, sorry, the equation, in equation you have terms in tan, sine inverse and cos inverse. Please do not apply the formula. Please do not think of expressing this in terms of sine inverse and applying the formula sine inverse x plus sine inverse y. We will not do this way. Some will become very, very lengthy. And so I gave you one name. I gave you the name of the method, and that method is shifting method. ये दिमाग में एकदम बैठा लेना और दोबारा ये गलती, मतलब ये चीज भूलना मत। मतलब यहाँ पे अगर हमको x का वैल्यू निकालना होगा और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है, तो हम लोग किसी फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करने वाले, हम लोग शिफ्टिंग मेथड से करेंगे। तो ये शिफ्टिंग मेथड क्या है देखना, हम इन दोनों टर्म्स में से किसी एक टर्म को राइट पे लेके चले जाएंगे। I will take any one term on the right hand side. That is up to us. Clear? Next. Now students tell me, if cos inverse x is theta, if cos inverse x is theta, can I write x is equal to cos theta? Yes. So can I write this as x equal to cos of pi by 6 minus sin inverse x by 2? Please everyone note down मैंने क्या किया, इसको मैंने राइट पे लिया। अगर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि क्या हम cos इनवर्स को राइट पे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो। मैं पहले एक बार ये वाला मेथड कंप्लीट कर देता हूं, फिर मैं दूसरा भी बताऊंगा, दोनों ही करेंगे। अब यहां पे हम लोग cos of a minus b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। I am finding few students are copying and not looking at the board. Please look here. Apply cos of a minus b का formula, and the formula is cos a into cos b clear plus sin a into sin b. Is this clear to everyone? I have applied the formula cos of a minus b, which is cos a into cos b plus sin a into sin b. So as a result, we are finding that the value of cos 30 degree is equal to √3/2. ठीक है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये cos है और ये sin इनवर्स में, तो मुझे ये sin इनवर्स को क्या में कन्वर्ट करना होगा, cos इनवर्स में। तो तुम लोग इसको कन्वर्ट कर लेना, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसको अगर हम cos इनवर्स में कन्वर्ट करें तो ये cos इनवर्स हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 minus x square divided by 2. Is this clear to everyone? You know how to do? इसको ट्रायंगल पे रिप्रेजेंट करना और उसके बाद इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, what is the value of sin 30? It is half. What is sin of sin inverse x by 2? It is x by 2. अब ये half into x by 2 मतलब x by 4 हो गया। इसको हम लेफ्ट में लेके आके इसके साथ सिंपलीफाई कर देते हैं, ठीक है। x है यहाँ पे और यहाँ पे x by 4 आएगा, इसको लेफ्ट में लेके सिंपलीफाई कर देते हैं।
cos of cos inverse x is equal to x. x minus x by 4 का अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3x by 4. ये हो गया root 3 by 4, 2 to the 4. So we find that 4 gets cancelled both the sides, and whatever is left now, whatever is left, that is 3x equals to root 3 into square root of 4 minus x square. Let us square both the sides. 4 cancel हो गया, left में 3x बच गया और right में root 3 into under root 4 minus x square बचा. Now let us square both the sides because ये root है और root के अंदर x है और हमको x को सॉल्व करना है, तो हम लोग x का वैल्यू निकालने के लिए मुझे यहाँ पे रूट हटाना पड़ेगा. So let us square both the sides. We have 9x square 3 times 4 minus x square. 3 3 is 9. So we have 4x square equals to 4, x square equal to 1. So x is equal to how much? Plus minus 1. Now the question is कि क्या प्लस माइनस 1 से दोनों आंसर सेटिस्फाई करेगा या फिर दोनों आंसर सेटिस्फाई नहीं करेगा या फिर कोई एक ही आंसर सेटिस्फाई करेगा, वो हमको सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. वो देखने से पहले मैं ये चाहता हूं कि सबको यहाँ पे पहले कॉपी करें और अगर कोई डाउट है तो पहले पूछ ले, फिर मैं लास्ट पार्ट बताऊंगा कि कौन सा कैसे चेक करना है कि कौन सा सोल्यूशन सेटिस्फाई करे. कॉपी करेंगे. See, so out of these two answers, which answer is possible and which is not? Listen here, how to check. At the place of x, put 1. Now tell me 1 cos के किस एंगल का वैल्यू होता है बताओ? किस एंगल का वैल्यू होता है? इसका 0 डिग्री होता है. प्लस हाफ साइन के किस एंगल का वैल्यू होता है? 30. So what is 0 plus 30? It is 30, मतलब 1 तो क्लियरली सेटिस्फाई कर रहा है. Let's put -1 here. अगर हम x की जगह -1 लगाएंगे, देखो कहीं सेटिस्फाई नहीं करेगा, चेक करना नहीं पड़ता. cos inverse -1 is pi minus cos inverse 1 and sin inverse minus half is minus sin inverse half. ये तो 0 हो गया इसका आंसर और इसका आंसर 30. So what is 180 minus 30? It is 150. क्या आ रहा है 150 राइट साइड में? नहीं. इसका मतलब -1 सेटिस्फाई नहीं कर रहे और 1 क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई. तो क्या लिखोगे तुम लोग? Since x equal to -1 does not satisfy this equation, but therefore x equal to 1 is the required solution. Okay. तो मैंने कहा ना तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से अपने आप आ जाएगा कि कहां पे क्या है. डोंट वरी. देखो दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, cos इनवर्स x को राइट में लेके चलेंगे. उसके बाद sin इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा को हम लोग x इक्वल्स टू sin थीटा लिख सकते हैं. sin थीटा एक काम करो ना, तुम लोग इसको कंप्लीट कर लो. मैं जो कर रहा हूँ तुम लोग ट्राई करो. कंप्लीट दिस सम दिस वे. कंप्लीट. Please check your solution, everyone.
ठीक है, आया सबका? Yes, sir. So everyone listening, question number 15, I thought of doing in the class, but actually it is almost the same, almost के एकदम same है. So you'll try this at home. Everyone try number 16. Everyone try number 16 and 18 right now. First try number 16. ठीक है, shift 16 number try करो अभी. So the question is number 16, but ध्यान से note करना. Is sin inverse x plus sin inverse 2x, and we have on the right hand side pi by 3. So see, take any one term on the right hand side, any one term, कोई भी एक. उसके बाद sin inverse x equals to theta को हम लोग x equals to sin theta लिख सकते हैं. उसके बाद sin of a minus b का फॉर्मूला अप्लाई करें, which is sin a into cos b minus cos a into sin b. अब देखना एक बार, sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है. sin इनवर्स x को मुझे cos इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, उसके बाद cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, होता है ना हाफ cos 60 का वैल्यू. Then the value of sin inverse x is x. Take this half x on the left hand side. I mean, bring this half x on the left hand side. Cos of cos inverse x is x. ये हो जाएगा 5x/2. 2 gets cancelled. ये आ गया 5x equals to √3 times square root of 1 minus x square. Now square both the sides. If you square both sides, you get 25x square equals to 3 into 1 minus x square. 25x square equals to 3 minus 3x square. 28x square equals to 3. So x equals to plus minus √3/√28. This is the answer. But out of these two values, I mean plus minus √3/√28, कौन सा आंसर पॉसिबल होगा, कौन सा नहीं, बताओ तो एक बार. Plus √3/28. यस, प्लस वाला पॉसिबल होगा, क्योंकि देखो sin इनवर्स ऑफ x, यहाँ आंसर राइट में पॉजिटिव है और यहाँ बीच में प्लस है. sin इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, माइनस sin इनवर्स x. तो अगर हम लोग प्लस पुट करेंगे तब जाके पूरा सॉल्व करके रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव. सो इतना लगा के देखने का जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं x equal to minus √3/√28 does not satisfy, therefore x equal to plus √3/√28 is the required solution. Okay, Papadal, try the next sum. After this, everyone try question number 18. Try number 18. So everyone note down the next sum, that is number 19. And the question is sin inverse 1 minus x minus 2 sin inverse x equals to pi by 2. ध्यान से देखो, ये यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे शिफ्टिंग मेथड लगाना है.
लेकिन कोई मुझे बता सकता है, तुम लोग मुझे बताओ कि इन दोनों में से किसको शिफ्ट करना ज्यादा बेटर होगा। देखो बाकी जितना भी सम किया था तुम लोग, कोई को भी शिफ्ट करने से हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों में से किसी एक को शिफ्ट करने से ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा बढ़िया होगा, बता सकता है कि कोई? फर्स्ट वाला को शिफ्ट करना चाहिए। देखो वैसे तुम्हारा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी फर्स्ट वाला ज्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला को अगर हम राइट में शिफ्ट करें तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा? व्हाट इज पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x? Yes. What is pi by 2 minus sin? Cos inverse. You all know that sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. All right. So pi by 2 minus sin inverse x is cos inverse x. अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग ये नहीं कि इसको cos में कन्वर्ट करेंगे, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, ऐसा नहीं। हम क्या करेंगे देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ cos of minus 2 sin inverse x equal to 1 minus x plus check once? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? You all know that cos inverse x equals to theta को हम लोग x equals to cos theta लिख सकते हैं, ठीक है? तो cos inverse 1 minus x equals to theta को 1 minus x equals to cos theta लिख सकते हैं, ठीक है? अब बताओ एक बार तुम लोग, what is cos of minus theta? What is cos of minus theta? Yes, tell me everyone. Cos theta. Cos theta. pi minus cos theta. ना cos inverse होता है वो, ये cos है। नेक्स्ट, अब मुझे बताओ यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे तुमको दो ऑप्शन देता हूँ। cos 2a का फॉर्मूला है 2 cos square a minus 1 और एक है 1 minus 2 sin square। Can you tell me out of these two formula which formula it is better to apply here? कौन सा अप्लाई करने से ज्यादा बेटर होगा? 1 minus 1 minus 2 sin square. now see why if I apply, just note down, अगर मैं यहाँ पे cos 2a का, अगर मैं cos 2a का सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं तो बेटर क्यों होगा? देखो यहाँ पे नोट डाउन, इससे फायदा क्या होगा? देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, cos 2a का अगर मैं 1 minus 2 sin square a का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो क्यों बेटर होगा? नोट डाउन, ये फॉर्मूला अप्लाई करने से फायदा ये है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x कितना होता है? साइन ऑफ साइन इनवर्स x x होता है, और अगर मान लो मुझे कोई पूछे कि इसका होल स्क्वायर कितना होगा तो x स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या है बताओ तो, साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x, तो साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x को साइन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, बिकॉज व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा? आई कैन राइट साइन थीटा का होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज साइन ऑफ साइन इनवर्स x? इट इज x, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। बट अगर मान लो हम ये फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता कि ये cos है और ये sin इनवर्स है। सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करने से बेटर क्यों होगा? बिकॉज sin ऑफ sin इनवर्स x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, ठीक है? नेक्स्ट, 1 गेट्स कैंसिल, ठीक है? माइनस साइन भी कैंसिल कर दो, ठीक है? माइनस साइन को कैंसिल कर दिया, लेकिन क्या मैं x कैंसिल कर सकता हूं यहाँ पे? तो सर पता है अगर तुम लोग x कैंसिल कर देगा ना तो पता है वही चीज तुम लोग कैंसिल कर देगा जो आंसर आएगा, तुम देखना शायद 0 ही आंसर होगा आई थिंक। तो हम लोग x को लेफ्ट में लेके आ जाएंगे, दोनों में से x कॉमन ले लो, सो ईदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू हाफ। अब दोनों में से कौन सा आंसर सेटिस्फाई करेगा? तो 0 यहाँ पे लगा के देखते हैं, 0 1 माइनस 0 कितना होता है? 1 0। अब बताओ साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होगा? फटाफट बताओ। pi by 2. पाई बाय 2। साइन इनवर्स 0 कितना होता है? 0, 2 0 से 0, पाई बाय 2 माइनस 0 पाई बाय 2। अब तुम दूसरा वाला वैल्यू लगा के देखो, हाफ, 1 माइनस हाफ इज हाफ, यहाँ पे भी हाफ। अब बताओ हाफ साइन के किस एंगल का वैल्यू होता है?
किसका होता है 5/6 30 30 30 minus 2 3 is 60 कितना होता है माइनस 30 क्या माइनस 30 है राइट साइड में क्या माइनस 30 है राइट साइड में नहीं तो क्या लिखोगे तुम लोग x equals to half does not satisfy the equation therefore x equal to 0 is the required solution okay I hope it is clear हम लोग यहाँ पे अगर हाफ पुट करेंगे तो 1 minus हाफ हो जाएगा हाफ हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स हाफ क्या होता है हाफ साइन के किस एंगल का वैल्यू होता है sin 30 तो यहाँ पे भी 30 है यहाँ पे 2 into 30 तो नहीं आ रहा राइट साइड के बराबर so that's why we find that x equal to half is not the solution x equal to 0 is the required solution एक काम करो तुम लोग ये वाला सब को कॉपी करने के बाद ये कॉपी करो आराम से पहले उसके बाद तुम लोग ट्राई करेगा नंबर 20 everyone is going to find number 20 so note down number 20 everyone is 4 sin inverse x plus cos inverse x equals to pi ठीक है देखो यहाँ क्या करेंगे देखो जब भी इस तरह का सिचुएशन हो इसलिए ध्यान रख सकते हैं जब भी इस तरह का सिचुएशन हो कि एक पूरा इक्वेशन में साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का जो रेशियो है वो सेम अगर हो so please note down that you either express the entire equation in terms of cos inverse x or in terms of sin inverse now do you know what is the reason why I'm saying this way अगर मान लो sin inverse cos inverse है tan inverse cot inverse है sec inverse cosec inverse है ये सारे सिचुएशन में ऐसा मैं बोल रहा हूं पता है ऐसा क्यों because sin inverse x plus cos inverse x is equal to what pi by 3 because tan inverse x plus cot inverse x is equal to what pi by 2 because sec inverse x plus cosec inverse x is equal to what pi by 2 तो इससे फायदा क्या होगा instead of shifting it is better that we express either in terms of sin inverse or in terms of cos inverse because देखो यहाँ पे x है ये भी x है और हम लोग को sin inverse x और cos inverse x का रिलेशनशिप भी पता है तो क्यों ना हम लोग इसको एक में एक्सप्रेस कर दें मतलब cos inverse x को pi by 2 minus sin inverse x में एक्सप्रेस कर दें now what is 4 sin inverse x minus sin inverse x 4 sin inverse x minus sin inverse x is 3 sin inverse x 3 sin inverse x ठीक है pi by 2 को राइट में ले लेना pi minus pi by 2 is pi by 2 3 इधर आ गया sin inverse x is pi by 6 x is sin pi by 6 and the value of sin 30 is half समझ में आया तो इसके बाद कैसे हुआ x equal to sin pi by 6 because अगर sin inverse x pi by 6 है तो फिर x क्या हो जाएगा sin pi by 6 ऑलराइट एवरीवन तो ये सिचुएशन याद रखना जब भी इक्वेशन में sin inverse x cos inverse x sin inverse 1 minus x cos inverse 1 minus x हो मतलब जब भी दोनों का जो रेशियो है वो अगर सेम हो तब हम ऐसा रिड्यूस करते हैं ठीक है ना सबको क्लियर है तो एक काम करो तो सबको अगर ये समझ में आ गया एवरीवन ट्राई नंबर 21 चलो 21 ट्राई करो 21 and this is the last sum in the part how to find the value of x do sum number 21 hurry so I think yes the answer is √3 okay √3 है ना शब्द सबका yes sir अब देखो यहाँ से अब बाकी सब तुम लोग से हो जाएगा एक सा मत करना ठीक है सबको नंबर 22 डोंट डू नंबर 22 बाकी सब करना है ठीक है तो ये 6 नंबर का सारा जितना भी है सब क्वेश्चंस एक बार सारा कोशिश करना तुम लोग और सारा कंप्लीट करना एक्सेप्ट नंबर 22 15 में डाउट आ सकता है 25 है सॉरी बट आई वांट एवरीवन टू कंप्लीट दिस सम देखते हैं कौन कर पाता है 25 में डाउट आ सकता है मैंने बोला ठीक है 7 नंबर यू डोंट हैव टू डू प्लीज क्रॉस नंबर 7 5
The only sums which is left is number 9. 9 का भी सारा नहीं, ठीक है, 9 का सिर्फ कुछ ही सम्स करना है. सो बस 9 बचा हुआ है. 8 भी नहीं करना है, ठीक है, अभी 8 नंबर भी नहीं करना है. Only 9 is left. So we require one more class that I will arrange